Good morning, student. I am Pramila, your computer teacher. I welcome you back on your online computer class. Student, in our last class, we have started our chapter number 6, Computer Keyboard. Remember? So, what all things we have learned in our last class? Let's do a fast recap first. सबसे पहले हम जल्दी से फास्ट रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. ठीक है? We use a pencil or pen to write in our notebook. Likewise, we need a keyboard to type numbers, characters, words or sentence on a computer. There are 3 types of keys on a keyboard: alphabet keys, number keys and special keys. Alphabet keys are used to type letters, words or sentences. There are 26 alphabet keys on a keyboard. Number keys. The number keys are used to type numbers. They are marked from 0 to 9. There are 10 number keys on a keyboard. Correct? Remember? Then we have learned about special keys. So, what are the special keys? Some special keys are spacebar key, enter key, like that. We have learned about spacebar key. The spacebar key is used to add blank space between 2 letters, words or numbers, like Riya Bhatia. If we type the name given on the left, see how it will look, Riya Bhatia. Now, if we press the space bar key after Riya, the name will appear as shown on the right side. Correct? Remember, then we have learned about enter key. Enter key is used to move the cursor to the next line. A keyboard has 2 enter keys. These keys are different in shapes. Correct? Then what else we have learned? We have learned about cursor. The cursor, see, this is your cursor. A cursor is a small blinking line on the screen. कर्सर जो होती है वो एक छोटी सी लाइन होती है जो ब्लिंक करती रहती है. The vertical blinking line on the monitor screen is called your cursor. ठीक है? So let's start today's topic. Now student, today we will learn about backspace key. Backspace key is a kind of special key. हमारे पास जो special keys हैं उनमें से एक backspace key है. So what is that backspace key? आपको दिख रहा है ये जो highlighted है, this is your backspace key, जिसपे एक ऐसा arrow mark होगा. Can you see this arrow mark? ये arrow mark वाला जो आपका key होगा इसे हम backspace key कहते हैं. The backspace key erase the letter to the left side of the cursor. जहाँ पे भी आपका कर्सर है उसके लेफ्ट साइड का जो भी अल्फ़ाबेट है, जो भी वर्ड है, जो भी नंबर है, जो भी चीज़ है उसको इरेज करने के लिए, उसको मिटाने के लिए आपको बैक स्पेस की ज़रूरत होती है. ओके, तो बैक स्पेस की क्या करता है? जहाँ पे भी आपका कर्सर रहता है उसके वो लेफ्ट साइड के जो भी अल्फ़ाबेट है, जो भी चीज़ है, जो भी लेटर है उसको वो इरेज करता है. लाइक सपोज राइट नाउ कैन यू सी कंप्यूटर इज रिटन ओवर हियर. तो कंप्यूटर की स्पेलिंग में क्या गलती है? डबल आर इज देयर, जबकि कंप्यूटर की स्पेलिंग में क्या होना चाहिए था? COMPUTER, एक सिंगल आर होना चाहिए था. सो वी कैन करेक्ट दिस रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड बाय यूजिंग दिस की. हम अपने इस की हेल्प से आपकी ये जो आर जो लिखा था उसे हम इरेज कर सकते हैं. एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ. शैल आई शो यू वन मोर एग्जाम्पल? आई लिव इन दिल्ली. यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्सर कहाँ है इस वक्त? वेयर इज द कर्सर राइट नाउ? कर्सर इज एट दिल्ली. दिल्ली के आगे, आई के आगे है. दिख रहा है कर्सर आपको? अब आपको कहाँ, इस पे स्पेलिंग कहाँ गलत है? स्पेलिंग इज रॉन्ग नियर बाई इन. जहाँ पे इन है वहाँ पे डबल एन है. सो फर्स्ट आपको कर्सर को बैक लेके आना है. तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट एरो की यूज करके आप अपने कर्सर को पहले यहाँ लेके आएंगे. डी से पहले दिख रहा है आपको?
एंड देन यू कैन यूज बैक स्पेस की। जैसे ही आप अपना बैक स्पेस की यूज करेंगे आपका वो जो इन है वो चेंज हो जाएगा। दिख रहा है? जैसे ही आप कर्सर लाएंगे उसके बाद बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। सो आई होप इट दिस मच इज क्लियर। नाउ लुक एट दिस, दिस इज योर डिलीट की। डिलीट की इरेज द लेटर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। जैसे बैक स्पेस की क्या कर रहा था, लेफ्ट साइड का जो भी कर्सर के था उसको इरेज कर रहा था, जबकि डिलीट की जो है वो कर्सर के राइट साइड की जो भी चीज़ है उसको इरेज करेगा। समझ आ रहा है? लेफ्ट साइड का अगर कोई भी लेटर आपको इरेज करना है तो आप बैक स्पेस की यूज़ करेंगे, जब राइट साइड का कुछ भी इरेज करना है तो आप डिलीट की को यूज़ करेंगे। क्लियर? कैन यू सी वेयर इज योर डिलीट की? आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका डिलीट की है। ये आपका कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड में इस तरफ आपको ये डिलीट की दिख जाएगा। ठीक है, दिस इज योर डिलीट की। एंड वेयर इज योर बैक स्पेस की? जस्ट सी ओवर हियर, दिस इज योर बैक स्पेस की। So delete key is also used to erase characters, but it erase characters one by one to the right of the cursor. ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक कि हम राइट साइड का जब भी हमें डिलीट करना है, इरेज करना है तो हमें डिलीट की यूज करना है। Look at this example. I like to eat mangoes. दिख रहा है आपको कर्सर कहाँ है इस वक्त? कर्सर इज आफ्टर दिस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद आपके पास कर्सर है। ठीक? To delete the letter G in the sentence, move the cursor using the left arrow key to the left of the letter G. आप देखो अभी कर्सर कहाँ है? G से पहले, तो बस आप वहाँ पे आएंगे और आप then you will press delete की और आपका जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। देखो हट गया। क्लियर है? Now let's learn about caps lock key. Now what is caps lock key? The caps lock key is used to type letters in capital. आपको जब भी कोई एक अल्फाबेट कैपिटल लेटर में लिखना है तब आप caps lock key को यूज करेंगे। The caps lock key is used to type letters in capital. Press the caps lock key once. The caps lock light will turn on. जैसे ही आप caps lock key जो है उसको एक बार प्रेस करेंगे, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, उसको आपने एक बार प्रेस किया, जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ जो कैप्स लॉक के जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। कैन यू सी दैट? आपको दिख रहा है ना, जैसे ही आपने कैप्स लॉक की को प्रेस किया आपकी कैप्स लॉक की जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। जैसे ही लाइट ऑन हो जाएगी उसके बाद वट एवर यू विल टाइप वो सब कुछ कैपिटल लेटर में आएगा। सी दिख रहा है आपको? इफ यू प्रेस कैप्स लॉक की द ग्रीन लाइट विल ग्लो ऑन द कैप्स लॉक की। इट मीन्स दैट वट यू टाइप will be type as upper case letter. सब कुछ जो भी आप टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में आएगा। जैसे ही आपने कैप्स लॉक की प्रेस किया और यहाँ लाइट ऑन हो गई तो देखिए जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो सब कुछ कैपिटल लेटर में आएगा। क्लियर? नाउ लुक एट दिस। टू स्विच इनटू लोअर केस प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन। अगर आपको कोई चीज़ फिर स्मॉल लेटर में लिखनी है, क्योंकि सारा चीज़ आप कैपिटल लेटर में तो लिखते नहीं, अगर आपको स्मॉल लेटर में लिखना है तब आपको क्या करना होगा? आपको दोबारा से कैप्स लॉक की को प्रेस कर देना है। एक बार आपने प्रेस किया तो ये लाइट ऑन हो गई थी, जब दोबारा आप प्रेस करेंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। कैन यू सी दैट? टू स्विच इनटू लोअर केस प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन। द लाइट ऑन द कैप्स लॉक की टर्न्स ऑफ, देन you will type in lower case. Okay? समझ आया ये? Now see, if I want to, can you see this light is on? जब भी लाइट ऑन रहेगा इट मीन्स आपने कैप्स लॉक प्रेस किया था। कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो आप जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक? अब जैसे ही आप इसे दोबारा प्रेस कर देंगे तो अब क्या होगा? देखो कैप्स लॉक की का कलर ऑफ हो गया। अब जो भी आप टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर्स में आएगा। सी सेम सेंटेंस अभी स्मॉल लेटर में हो गया क्योंकि यहाँ पे कैप्स लॉक ऑफ है। क्लियर? नाउ वी विल लर्न अबाउट एरो कीज। देयर आर 4 एरो कीज, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ये आपके जो होते हैं कीज कीबोर्ड में, इसे हम एरो की कहते हैं। देखो एरो मतलब ये जैसे तीर बना हुआ है ना, इसी को हम एरो कहते हैं। ठीक है? कैन यू सी दिस? ये जितने हैं ये सब आपके एरो कीज हैं।
और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरो कीज यू कैन मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। आप अपने कर्सर को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट जहाँ पे भी करना है आप उससे मूव कर सकते हैं। अप एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर अप। देखो ये जो ऊपर की तरफ है इसको हम अप एरो की कहते हैं। दिस इज योर डाउन एरो की। डाउन एरो की हेल्प से आप क्या करेंगे, आप जब भी आप इसको कोई कर्सर को नीचे लाइन में लाना है तो आप डाउन एरो की यूज करेंगे। देखो नीचे आया। जब आपको लेफ्ट मूव करना है तो आप लेफ्ट साइड के लिए वो करेंगे, फिर राइट करना है तो राइट का एरो की प्रेस करेंगे। क्लियर है? So what all things we have learned today? We have learned about backspace key, caps lock key, arrow keys. आज हमने 3 कीज और डिलीट की, हमने 4 कीज के बारे में पढ़ा। तो अभी मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ ऑन माई सिस्टम। नाउ स्टूडेंट, कैन यू सी वेयर इज योर कर्सर नाउ? कैन यू सी दिस कर्सर? कर्सर दिख रहा है आपको? देखो कभी आ रहा है कभी जा रहा है। आर के आगे जो है कंप्यूटर वर्ड के आगे जो ब्लिंक कर रही है लाइन, उसी को हम कर्सर कहते हैं। ओके, नाउ सपोज आज अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा बैक स्पेस। बैक स्पेस की से क्या होता है, आपका जो भी लेफ्ट साइड का जो लेटर है, जो भी वर्ड है, वो आपका इरेज हो सकता है। तो अभी कर्सर कहाँ है? कर्सर का लेफ्ट साइड क्या हुआ? दिस इज योर राइट साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड। जो भी आर के इस तरफ है, कर्सर के इस साइड है, उसे हम लेफ्ट साइड कहते हैं, और जो भी कर्सर के इस साइड हुआ वो राइट हुआ। तो नाउ सी, जैसे ही मैं बैक स्पेस की यूज करती हूँ तो देखो क्या होता है। आपका गया, आर हट गया, फिर ई हट गया। कैन यू सी दिस? क्लियर? ये आपका बैक स्पेस की का यूज हुआ। बैक स्पेस यूज करने से आपने जो भी लिखा है वो आपका मिट जाएगा, चाहे वो अल्फाबेट हो चाहे वो नंबर हो। क्लियर? देखो लेफ्ट साइड का है, सब हट रहा है। क्लियर? अब देखो अब कर्सर कहाँ है? सी के आगे है कर्सर, दिख रहा है आपको? अगर अब आप बैक स्पेस यूज करेंगे तो क्या होगा? वो तो लेफ्ट साइड ही है, कुछ भी नहीं हो रहा। देखो कुछ भी नहीं हो रहा ना, सी का सी वैसे ही रह रहा है। अगर उसकी जगह मैं अब डिलीट की यूज करती हूँ तो देखो क्या होता है। जैसे ही मैं डिलीट दबाऊंगी तो देखो सी गया, एच गया, दिख रहा है? इरेज होता जा रहा है ना। गेटिंग मी? राइट साइड का जो भी अल्फाबेट है आपका वो डिलीट होता जा रहा है। जब भी आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो मिट जाएगा। कर्सर के लेफ्ट साइड का अगर आपको कुछ हटाना है तो बैक स्पेस, और राइट साइड का हटाना है तो डिलीट की यूज करना है। क्लियर? इतना क्लियर है? अब हम देखेंगे कैप्स लॉक की का क्या यूज है। सपोज अभी मैं कैप्स लॉक की ऑन करती हूँ। जैसे ही मैंने ऑन किया, अब देखो मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर। कैन यू सी? कंप्यूटर के सारे अल्फाबेट्स कैपिटल में आए। अगर मैं यही चीज ऑफ कर दूं, पहले हम ना कर्सर को दूसरी लाइन में लाते हैं। दूसरी लाइन में लाने के लिए हमें क्या प्रेस करना होगा? एंटर की। अब क्या करना है मुझे, मैं जो कैप्स लॉक की है उसको दोबारा से प्रेस करती हूँ। मेरी लाइट ऑफ हो गई। अब मैं जो भी लिखूंगी वो क्या हो जाएगा? वो स्मॉल लेटर में आएगा। दिख रहा है आपको? कैन यू सी? पहला वाला कैप्स लॉक ऑन था तो कंप्यूटर के सारे अल्फाबेट्स अपर केस में है, कैपिटल लेटर में। और जब कैप्स लॉक ऑफ है तो देखो आपके अल्फाबेट्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में है, लोअर केस में। समझ आया? क्लियर है इतना? देन व्हाट एल्स वी हैव लर्न? वी हैव लर्न अबाउट एरो कीज। अब देखो एरो की का मतलब क्या होता है। एरो की का हमें क्या यूज है? देखो अभी कैन यू सी 3 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर इज रिटन। वन इज इन कैपिटल लेटर, वन विथ येलो एंड वन इज नॉर्मल स्मॉल लेटर में आपके कंप्यूटर लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे क्या है? कीबोर्ड है। अब सपोज करो मैम को कीबोर्ड के आगे कुछ लिखना है, जैसे कीबोर्ड नंबर 1 2, ठीक है, कीबोर्ड नंबर 1 ये लिखना चाहती है मैम। कर्सर कहाँ है इस वक्त? कर्सर इज अबव हियर। दिख रहा है आपको कंप्यूटर पर? कर्सर इधर है। तो कीबोर्ड कहाँ है? यहाँ नीचे। तो आपको कर्सर को क्या नीचे लेके आना होगा। तब आप क्या यूज करते हैं? डाउन एरो। देखो जैसे ही मैं डाउन एरो को प्रेस करती जा रही हूँ हमारा कर्सर नीचे आता जा रहा है। आ गया नीचे। अब मैं यहाँ पे जाऊँ तो 1 लिख सकती हूँ। देखा? अभी मुझे चाहिए कि जो येलो कलर में कंप्यूटर लिखा है मैं कर्सर वहाँ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब मैं अप एरो की यूज करूँगी। जैसे ही मैंने अप एरो की यूज किया मेरा कर्सर ऊपर चला गया। लेकिन मुझे कंप्यूटर आर के आगे लिखना है 1,
तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, राइट एरो यूज़ करूँगी। जैसे ही मैं अपना राइट एरो यूज़ कर रही हूँ, देखो कर्सर मूव हो रहा है, दिख रहा है आप लोग को, मैं वहाँ 1 लिख दूँगी। समझ आया? अब मैं फिर से डाउन आ रही हूँ। अब मेरे को कंप्यूटर के आगे, ये जो आगे है इसके आगे कुछ 1 लिखना है, तो उसके लिए मैं जो फिर लेफ्ट एरो प्रेस करूँगी और देखो अब मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगी। दिख रहा है? क्लियर यहाँ तक? तो एरो की का यूज़ देख लिया आपने। ऊपर अगर आपको अप जाना है तब आप अप एरो की यूज़ करेंगे, डाउन जाना है तो डाउन एरो की, लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट एरो की, एंड राइट जाना है तो राइट एरो की। और कर्सर क्या है? जो ये ब्लिंक करता है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। क्लियर? जो ब्लिंकिंग लाइन होती है इसी को हम कर्सर कहते हैं। डन? गुड।